Hi, good morning all. Let us continue the topic of semiconductor. So far what we had discussed about semiconductor, that in semiconductor we have bands which are a little separate, but the gap between them is not as like insulator. Okay, this gap is less, we discussed, right? So this is my valence band, conduction band, and this is my valence band. Okay, so we have electrons filled in valence band, but the conduction band is totally empty, right? We had discussed this. So when I'm heating it, what happens, some electrons from here can easily jump to the conduction band and conduct electricity, right? This was we discussed about semiconductor. Now we had even discussed about the intrinsic semiconductor. So guys, if I talk about intrinsic semiconductors, these are something which are pure. We can say these are the pure semiconductors, like silicon, germanium, arsenic, right? Arsenic, tellurium, there are several. Okay, let's take an example. Majorly we are going to focus upon silicon and germanium because we majorly use them. Okay, so intrinsic is what? Intrinsic is something which is pure. You can say pure semiconductor is called as intrinsic. So any pure semiconductor which is able to conduct electricity, so I can write pure conductor, any pure conductor, that is semiconductor, any pure semiconductor. Okay, any pure semiconductor material which has very low, it has very low conductivity, it is very low but finite, it has low but finite electrical conductivity. It does have electrical conductivity, but it is low and finite. Okay, this type of electrical semiconductors are called as intrinsic semiconductors. This we had already studied. Okay, here we can move electrons, we can move electron from valence band to conduction band by giving heat. So we all know that semiconductors at high temperature they behave like conductor. At low temperature they behave like insulators, right? That's why they are called as semiconductor. Partially they are behaving like a conductor, as well as sometimes they are behaving like a insulator, depending on the temperature, thermal energy they are getting. Okay, now this was about intrinsic semiconductor. Let us talk about the second part, which is extrinsic semiconductor. This is also very important. Extrinsic semiconductor. Okay team, so talking about extrinsic semiconductors, these semiconductors are impure. We can say these are impure. They have been doped. Okay, dope means what, guys? A dope is a term for impurity. Dope is a term for impurity. When you add some impurity to a pure semiconductor, then it becomes a extrinsic semiconductor. For example, why do we do doping? Why we actually need extrinsic semiconductors? Okay, to increase the conductivity of a semiconductor. Okay, how we can increase the conductivity of semiconductor? Don't worry, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा. Let us just understand कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है क्या पहले, उसके बाद और हम उसे बनाते क्यों और कैसे बनाते हैं वो देखते हैं. Then we'll look into the example so that you will get a clear picture of it. ओके, सो भाई क्या करते हैं हम, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में है, सो दैट हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा के, सो हम इसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं? दी कंडक्टिविटी ऑफ semiconductor, let me write SNC, semiconductors can be increased by doping. ये important term है, this is very important. by doping, हम डोपिंग करके क्या कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. द डोपिंग इज व्हाट? एडिंग इम्प्यूरिटीज. बाय इम्प्यूरिटीज मतलब क्या? अदर देन माय प्योर प्रोडक्ट, अदर देन माय प्योर क्रिस्टल, जो मेरा क्रिस्टल जिस भी एलिमेंट का बना हुआ है, उसके अलावा मैं कोई एक दो छोटा सा इम्प्योरिटीज विल ऑलवेज बी माइन्यूट, थोड़ी सी एकदम छोटी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ, सो दैट मैं उसका क्या बढ़ा सकूँ? कंडक्टिविटी बढ़ा सकूँ. ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ adding impurity
इज कॉल्ड एज डोपिंग, इज कॉल्ड एज डोपिंग। उसे मैं क्या बोलता हूँ, डोपिंग। और जो भी इम्प्योरिटी मैं ऐड करूँगा, दी एडेड इम्प्योरिटी विल बी रिफर्ड एज डोपेंट, उसे मैं क्या बोलूँगा, डोपेंट। ओके, सो गाइस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सिंपल मतलब क्या है भाई, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग ऑफ सम, आई एम रिप्लेसिंग वन पार्टिकल, वन एलिमेंट फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर बाय एडिंग अ इम्प्योरिटीज। सो भाई सिंपल इसका फंडा क्या है, इट इज लाइक why how if I want to define a extrinsic semiconductor, how will I define it? Will be defined as a doped semiconductor. Doped मतलब समझ गए ना, I have added impurities in this semiconductor. A doped semiconductor which has high conductivity, right, having higher conductivity. अच्छा, हायर कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है? इफ़ आई कंपेयर दिस विथ माई प्योर सेमीकंडक्टर, राइट, उससे ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, तो मुझे समझ में आएगी कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, राइट। सो अ डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग हायर कंडक्टिविटी देन व्हाट, देन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को मैं क्या बोलता हूँ, इंट्रिंसिक भी बोलता हूँ, राइट है, इंट्रिंसिक सेमी conductor. Okay, it is called as, it will be called as an extrinsic semiconductor. उसे मैं बोलूँगा extrinsic semiconductor. I'll call it as extrinsic semiconductor. समझ में आ रहा है? ओके, सो ये था मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई लोग, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है एन टाइप एंड दूसरा होता है पी टाइप। फर्स्ट इज एन टाइप एंड सेकंड इज पी टाइप, ठीक है। ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, अभी हर एक को हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। So guys, what is this n-type semiconductor? What is this n-type semiconductor? भाई यहाँ पे जो n है ना, इसको आप एक सिंपल फंडा समझ लो। n मतलब दिमाग में नेगेटिव रख लो, n मतलब समझ लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। n मतलब क्या समझ लो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए n मतलब नेगेटिव चार्ज समझ लो। तो भाई n टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा सेमीकंडक्टर होता है, इट कंटेन्स इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्शन बैंड में इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको बनाते कैसे है। पहले आप डेफिनेशन अगर हम देखें, एक सिंपल कंसेप्ट देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स increased number of what, electrons, where कहाँ पे increased number of electrons मिलेगा, in the conduction band, in the conduction band I'll find increased number of semiconductor in the conduction band, right? Just a moment. Now this will be more clear. अब ज़्यादा विजिबिलिटी होगी। ओके, ना अब ये बनता कैसे भाई, अब ये बनता कैसे, इसको बनाने के लिए एक सिंपल फंडा है अपने पास। हम क्या करते हैं, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले एक रफ आइडिया ले लो आप। तो अगर मेरे को एन टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसको बनाने के लिए मुझे एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, है ना। अब ये इम्प्योरिटी कुछ ऐसी डालूंगा जिसके वजह से क्या होगा, मेरा जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, बट उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब कंडक्शन बैंड में पहले जो भी इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होते नेचुरली, हम हीट करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर नेगेटिव
जिसके कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वैसे टाइप के कंडक्टर को मैं बोलता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर। वो कैसे मिलता है, सो इफ आई हैव टू सी दिस, एन टाइप सेमीकंडक्टर can be obtained, an n-type semiconductor can be obtained or is obtained by adding, हम इसमें क्या करेंगे, adding impurities, by adding impurities। भाई ये impurities क्या है, कहाँ से आती है, हम ये impurities डालते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। जो ग्रुप 15 में एलिमेंट्स है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, ओके, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उनमें से कोई भी एक कहाँ पे मैं ऐड करूँगा भाई, हमेशा देखो मेरे को अगर एक्सट्रिंसिक बनाना है, ठीक है, इम्प्योर या फिर डोप्ड वाला सेमीकंडक्टर बनाना है, तो वो मैं किस में एडिशन करूँगा, प्योर वाले में। तो आई विल ऐड ग्रुप 15 एलिमेंट टू व्हाट, टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और आई कैन से इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मैंने एक क्या कर दिया, ऐसा कुछ एलिमेंट डाल दिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अच्छा, अब मेरा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें मैं ग्रुप 15 ऐड कर रहा हूँ, वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, कौन से ग्रुप का होना चाहिए, इट शुड बिलोंग विच बिलोंग्स टू माई ग्रुप 14। जैसे कि मेरा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, these सेमीकंडक्टर्स दे बिलोंग टू ग्रुप 14, दे आर राइट, दे आर द पार्ट ऑफ ग्रुप 14। उसके अंदर मैं कौन से एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, ग्रुप 15 के, समझ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ओके, लेट मी जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल। ओके, इफ आई कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, मैं एक सिलिकॉन क्रिस्टल लेता हूँ, सिलिकॉन का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, आप सबको पता है भाई जो सिलिकॉन होता है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है कि नहीं, उसकी वैलेंसी टेट्राहेड्रल है, इट इज टेट्राहेड्रली लिंक्ड विद ईच अदर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, ये यहाँ होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4, such a way this will be my structure of my silicon crystal, जो भाई टेट्राहेड्रली लिंक है सब सिलिकॉन एटम से। ये सारे कौन से एटम है, ऐसा ही एटम्स है, these are what सिलिकॉन एटम्स। जब मैं एक स्मॉल क्वांटिटी का, अच्छा सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14 का एलिमेंट है। जब मैं एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ, इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ कौन से ग्रुप का, ग्रुप 15 ग्रुप के एलिमेंट का एक इम्प्योरिटी अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, लेट्स से मैं ग्रुप 15 से फॉस्फोरस, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, फॉस्फोरस ऐड कर रहा हूँ किसमें, सिलिकॉन में। जब मैं इसमें फॉस्फोरस ऐड करूँगा तो आपको पता है फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। वैलेंस फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। सिलिकॉन के कितने होते हैं, 4। इसके लिए ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड दिखा रहा है, टेट्राहेड्रल लिंकेज दिखा रहा है, लेकिन भाई फॉस्फोरस के इसमें कितना है, 5 है, इट हैज़ 5। सो भाई अब ये जो है समझो, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, सो ये सब क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे से पैर करके, है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका, एक इसका, ये एक इसका, ये इसका और एक ये इसका, इसका और एक इसका, this and this, this and this, this and this. Okay, so they are sharing this electrons, है ना, बॉन्ड बना रहे हैं ऐसा कुछ ऐसे टाइप में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मेरा लिंकेज आ रहे हैं इनके बीच में। ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भाई क्या कर रहे हैं, लिंकेज कर रहे हैं। कौन सा लिंकेज, टेट्राहेड्रल लिंकेज कर रहे हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी सी भाई सिलिकॉन, ईच सिलिकॉन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और उसकी वजह से ये टेट्राहेड्रली एक दूसरे लिंक है। जब मैं उसके अंदर एक छोटी क्वांटिटी की इम्प्योरिटी डालता हूँ ऑफ ग्रुप 15, लेट्स से एग्जांपल फॉस्फोरस,
जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ से सपोज ये सारे सिलिकॉन है, हाँ भाई, दीज ऑल आर व्हाट, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। चलो समझो यहाँ का एक सिलिकॉन मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ का एक सिलिकॉन बाहर निकल के उसके यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, फॉस्फोरस ऐड कर दिया, एक छोटी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी। लेकिन ध्यान देना दोस्त, जब मैं फॉस्फोरस ऐड करता हूँ, व्हेन आई एम एडिंग अ फॉस्फोरस, तो भाई फॉस्फोरस के बाहर कितने हैं, 5 है। फॉस्फोरस के बाहर कितने हैं, 5 है। तो भाई फॉस्फोरस का खुद का, अच्छा समझिए फॉस्फोरस है तो 1 2 3 4 तो है, 4 तो है फॉस्फोरस का, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इट हैज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसका से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो किसी भी सिलिकॉन से बॉन्ड नहीं करते, बिकॉज सिलिकॉन तो सब सारे लिंक्ड है 4 बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन से। देखो ये सिलिकॉन इस फॉस्फोरस के इससे, ये सिलिकॉन फॉस्फोरस के, ये सिलिकॉन फॉस्फोरस के इससे, ये सिलिकॉन फॉस्फोरस के से, फॉस्फोरस का 4 सेटिस्फाई हो गया, लेकिन एक खाली रह गया क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई और है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, आई हैव एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई जिसमें से मेरी फॉस्फोरस की 4 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 5वीं वैलेंसी रह गई, 5वां इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे ही रह गया। तो भाई अब क्या होगा, अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के लिए मिला है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ये यहाँ से उड़ के सीधा किधर जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और भाई कंडक्टिविटी चालू कर देगा। तो मेरा प्योर सिलिकॉन में कुछ नॉर्मल था, कुछ हो नहीं रहा था जब तक मैं हीट ना करूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, डोपिंग कर दी मैंने किससे, एक स्मॉल इम्प्योरिटी से जिसको हम फॉस्फोरस बोल रहे हैं, विच इज ऑफ ग्रुप 15 हैविंग वैलेंसी 5। तो उसने 4 तो सेटिस्फाई कर लिया और सिलिकॉन के बाद, बट 5वां इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसके वजह से इसकी ऑटोमेटिकली क्या बन गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, इसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज। तो जब भी मैं सिलिकॉन को डोप्ड करता हूँ, व्हेनेवर आई एम डोपिंग सिलिकॉन विद व्हाट, ग्रुप 15 एलिमेंट ऑफ फॉस्फोरस, है ना, तो भाई जो प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कम रहेगी एज कंपेयर टू दिस डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल। देखो भाई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम ही है, इट इज सेम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेम एज अर्लियर, ओनली द थिंग व्हिच हैज चेंज्ड इज द कंडक्टिविटी, ओके, द कंडक्टिविटी। सिर्फ प्योर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी की बात करूँ तो इट वाज लेस एज कंपेयर टू द डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल, डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल, ओके। अभी हमने बात की भाई जो अपना सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक एन टाइप का और एक पी टाइप का। तो एन टाइप का जो, अब अगर मैं इसको बैंड स्ट्रक्चर बनाता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज माय कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में ये कम सी जगह है, ओके, दिस इज माय वैलेंस बैंड, लेट मी फिल द वैलेंस बैंड, ओके, दिस इज माय वैलेंस बैंड, दिस इज माय व्हाट, कंडक्शन बैंड, ओके गैस, कंडक्शन बैंड। अभी हमने देखा कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो ये समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है कंडक्शन बैंड में। जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब मेरे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, दिस विल व्हाट, दिस विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी, दैट मीन्स डोपिंग इज इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ माई प्योर सिलिकॉन। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एक पोटेंशियल क्या करता हूँ, एक पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, व्हेन आई एम अप्लाइंग अ पोटेंशियल, ओके, एंड देन what will happen if I applied the potential, this will get influence and it will start the electrical conductivity, because what, now there is a change, because the charge carrier are increased, okay, पहले चार्ज कैरियर कम थे, अब चार्ज कैरियर क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन एक क्या हो गया, बढ़ गया है, राइट। सो अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इफ यू कंसिडर दिस, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे सेमीकंडक्टर्स को मैं डोप करता हूँ, दिस कैन बी डोप्ड बाय ग्रुप 15 एलिमेंट, दैट कैन बी डोप्ड बाय ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जैसे कि फॉस्फोरस हो गया तुम्हारा, आर्सेनिक हो गया, ध्वनि हो गया,
बिस्मथ हो गया, ये सारे जो आते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, मतलब ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब मैं इन एलिमेंट से डोप करता हूँ तो ये जो कंडक्टर बनेंगे ये मेरे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे. दिस सेमीकंडक्टर विल बी कॉल्ड एज एन टाइप semiconductors. I hope the extrinsic semiconductor is clear and n type is also clear. Simple guys. n type का मतलब समझ लो, n आ गया तो समझ लेना कि भाई इसमें क्या बढ़ने वाला है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने वाला है, इतने समझ लेना. अब नेगेटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा, इससे कम वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी ऐड करने से या ज़्यादा वैलेंसी वाले इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए. ऑब्वियसली ज़्यादा वैलेंसी वाला जब मैं ऐड करूँगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो भाई जो पहले जो प्योर फॉर्म में जितना है वो पहले अपनी वैलेंस से सेटिस्फाई कर देगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे विच विल जंप टू कंडक्शन बैंड. वंस दे आर इन द कंडक्शन बैंड, माय सेमीकंडक्टर विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. देयर विल बी मोर कंडक्शन as compared to the pure semiconductor. The examples are silicon and germanium, and they are doped with which group elements? Group 15 elements. What are the elements of group 15? Like phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. Okay, I hope now this is very clear to you. चलो अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो हमने बोला था पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर गाइस, जैसे एन टाइप को अपन ने नेगेटिव चार्ज समझा था, पी को हम क्या समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पी फॉर पॉजिटिव. ऐसा थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट. एन को आप नेगेटिव समझ लो. एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं. पी टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बदले इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक्सेस नहीं होंगे. जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा अपने आप सिस्टम का. समझ में आ रहा है, वैसे वालों को पी टाइप बोलते हैं, समझते हैं. चलो ठीक है. सो अगर मैं एक पी टाइप कंडक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे भी डोपिंग होगी, बिकॉज ये एक्सटेंसिक है, एक्सटेंसिक में डोपिंग तो होनी ज़रूरी है. बट यहाँ पे जो डोपिंग होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, वो होगी ऐसे ग्रुप एलिमेंट की जिनकी वैलेंसी हमारे प्योर वाले से कम है. तो अभी अगर मैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम लेता हूँ, दीज आर ऑफ व्हाट ग्रुप 14, तो अब मैं इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट की मिक्सचर करूँगा, डोपिंग करूँगा, इम्प्योरिटी ऐड करूँगा जो इनसे कम, जिनका इलेक्ट्रॉन कम है. फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू व्हाट योर ग्रुप 15 और ग्रुप 14 एंड 15. सो ग्रुप 14 वाले 4 वैलेंसी उनकी 4 थी, ग्रुप 13 वालों की कितनी होगी, 3 ही होगी. समझ में आ रहा है, उसकी 4 थी, इसकी 3 ही थी, तो इसकी 3 तो इनके 4 के में से 3 को सेटिस्फाई करेगी, फिर भी एक बोरॉन का बच जाएगा, एक उसका बच जाएगा. चलो समझाता हूँ, एग्जांपल से समझेगा, ठीक है. तो अगर मेरे को लिखना होगा, ठीक है, एक पी टाइप कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं. सो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी प्रोड्यूस, इट कैन बी produced. How can I produce a p-type semiconductor? By what? It is produced by doping. It is produced by doping a pure semiconductor. For example, silicon or germanium, I can say, with what? With an impurity, कौन सी इम्प्योरिटी, ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट. ओके, क्यों भाई इनका लेते हैं, बिकॉज these elements have less number of valence electrons. They have less number of valence electrons as compared to pure semiconductor. अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर से कंपेयर करूं तो भाई इनके पास वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, सो इफ आई टेक एन एग्जांपल, लेट्स अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन. तो ठीक है भाई, चलो बनाते हैं 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. 1 2
3 and 4. So these are all silicon. We know that silicon के पास बाहर कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, चलो इसको ऐसे छोड़ देता हूँ. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. तो भाई समझ लो ये सारे सिलिकॉन है. देखो मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही. दिस पार्ट आई हैव लेफ्ट पर्पसली. ओके, क्यों मैं बताता हूँ. तो अगर मैं एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें डोपिंग करना है मुझे. अब डोपिंग कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए. सो आई विल डोप इट विद ग्रुप 13 एलिमेंट. चलो ग्रुप 13 एलिमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोरॉन. बोरॉन ले लेता है. ओके, सो भाई अपने को पता है बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, है कि नहीं. मतलब ये 3, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है. 3 जन से बॉन्ड बना सकता है. तो अगर ये पूरा सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये सिलिकॉन का मेरा क्रिस्टल है. दिस इज क्रिस्टल ऑफ माय silicon. If I add a small impurity of boron in the crystal of silicon, I am adding a small impurity of boron in the system, in the crystal system of what, silicon. So क्या होगा भाई, सिलिकॉन्स के 4 है तो उन्होंने 4 दिखाया, लेकिन अब मेरा बोरॉन जो है उसका कितना है, 3 ही है. तो भाई वो 1 2 3 तो दिखा देगा, 3 के साथ बॉन्ड कर देगा. लेकिन भाई सिलिकॉन का एक ये वाला जो है उसका बॉन्ड नहीं होगा, वो रह जाएगा वहाँ पे, एक रह जाएगा, ये बॉन्ड नहीं होगा. तो यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी. देयर विल बी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट हियर, देयर विल बी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट हियर. और इसको मैं बोलता हूँ, इट विल क्रिएट अ होल. इट इज कॉल्ड एज होल. इससे मैं बोलता हूँ होल. दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, होल, बिकॉज देयर आर नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर. जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, देखो स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है. स्ट्रक्चर इज रिमेन सेम, structure remains same, but only thing what we got, see earlier there used to be 4 electron here अगर यहाँ पे silicon था, but now when I have replaced silicon with boron, I only have 3 electron. एक इलेक्ट्रॉन की जगह रह गई है, and this is empty space. This will be referred as hole. तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज मुझे दिखने मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज. I can assume that it will be a positive charge. जब भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, there will be an electrical difference somewhere in this crystal. So it will try to attract other negative particles to it. जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे होल बन जाएगा. तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ वाले से मांगेगा. जब यहाँ वाला का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जंप करेगा, तो यहाँ पे होल हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. तो भाई ये होल जो है वो फिर क्रिस्टल भर दौड़ते रहता है. जब ये होल क्रिस्टल भर घूमते रहता है, अल्टीमेटली होल नहीं घूम रहा है, इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ होल. बट व्हाट डू वी सी कि भाई होल मूव होते हुए दिख रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कटायन मूव हो रहा है कि नहीं. ओके, व्हेनेवर यू अप्लाइड द पोटेंशियल, वंस इट कम्स इन द पोटेंशियल, हाँ एक अप्लाइड पोटेंशियल दे दिया तो क्या होगा भाई, काम चालू हो जाएगा. जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मूव मेरा होल. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो मेरा होल यहाँ से यहाँ चला जाएगा. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो मेरा होल यहाँ से यहाँ चला जाएगा. तो दिस होल, द पॉजिटिव चार्ज, आई कैन से दिस होल, आई कैन टेल that it is a positive charge. So positive charge will move in the opposite direction as compared in the reference to movement of electron. and electron जिस भी direction move होगा उसके opposite direction में मेरा क्या move होगा भाई, होल या फिर positive charge. ठीक है, और ये होल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की अपने आसपास से, है ना. तो इसके लिए कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसपास से ले रहा है ना. तो अब क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वैलेंस बैंड में है, जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, जब मैं उनको थोड़ा भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ तो क्या करेंगे, वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट चालू करवाते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होगा, मेरे होल्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वेरिन आई एम यूजिंग अ एलिमेंट. Sorry team, these dogs are still not letting my life go easy in this lockdown period also. Okay, so we are talking about this particular thing wherein what I said
the group 14 elements are doped with what group 13 elements. For example, silicon has been doped with boron, which has less valence electron in the valence shell, so that it creates a hole because it has replaced a silicon. सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो इजीली कंडक्शन शेल में मूव हो सकते थे. बट अब मेरा इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन यहाँ पे कौन आ गया, बोरॉन, जिसके वैलेंस शेल में देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से एक गैप रह जाता है, एंड दिस बिकम्स होल. This hole will try to attract the electrons from the vicinity, from somewhere here. Whenever it will try to attract the electron will jump from this part to this. एंड जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर वापस वो यहाँ से बुलाएगा. सो अल्टीमेटली व्हाट यू ऑब्जर्विंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, होल विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, और इफ माई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, होल विल मूव इन दी right direction. That means hole which behave like a positive charge will always move in the opposite direction of the movement of electron. Then hence we get a conductivity. इसके वजह से मुझे क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिलेगा. ओके, सो अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, सो मेरा सिलिकॉन या फिर जो जर्मेनियम है, दीज आर माई प्योर इंट्रिंसिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दीज आर माई प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. दिस कैन बी डोप्ड with what, group 13 elements, right? Like what elements, like boron, gallium or indium, these all. So any my intrinsic semiconductor, when I'm doping it with group 13 element like boron, gallium or indium, this kind of semiconductor will be referred as p-type semiconductors. Okay, I hope now the concept of intrinsic and extrinsic semiconductor is clear, and p-type and n-type is also clear. Now let us talk about the properties. So since all this we were discussing the electrical conductivity, now let us talk about the magnetic properties of solids. So talking about magnetic properties ऑफ सॉलिड्स. सो भाई लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें, तो अभी हम हमारे जो सॉलिड उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बहुत है, तो अभी आपको भी पता होगा जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, व्हेन माय इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग, इट इंड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. इट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है कि नहीं. अगर मेरे बॉक्स में, मेरे वैलेंस शेल में अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, इफ आई एम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो जब स्पिन करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, इंड्यूस मैग्नेट वी कैन से. ओके, इफ माय शेल इज फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड है. अगर मेरे पास अनपेयर्ड नहीं, अब मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इसका स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिज्म आएगा वो इसके स्पिन के मैग्नेटिज्म से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी. लाइक डिपेंडिंग ऑन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस होंगे, अनबैलेंस होंगे. जब भी अनबैलेंस स्पिन होगा तो वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा, और जब भी बैलेंस स्पिन होगा वो मैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा. इट विल कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिज्म. ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देयर आर अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन है, तो इट विल शो magnetism. If there is a balanced thing, it will not show magnetism. It will not show magnetism or magnetic property. Is this clear? On this property we have divided this solid, we have classified, okay, on the basis of this magnetic property we have classified the solids into 3 major classes, 1, 2 and 3. The first major class is called as diamagnetic solids. The first class is diamagnetic solids. Second class is my paramagnetic solids. Okay, the last but not the least is ferromagnetic solids.
या फिर उसको मैं फेरोमैग्नेटिज्म भी बोलता हूँ. ओके, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फेरोमैग्नेटिज्म. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट अस सी ईच वन डीपली एंड गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्त डायमैग्नेटिक की. इसमें बात करेंगे पहले डायमैग्नेटिक की. भाई डायमैग्नेटिक में क्या कंसेप्ट है? डायमैग्नेटिक सॉलिड्स में ना जो भी उनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे पेयर्ड. इफ आई टॉक अबाउट डायमैग्नेटिक, इफ आई टॉक अबाउट डायमैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिज्म्स और डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, सो क्या होगा भाई, इस ऐसे सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर paired. Whenever my electrons are paired, their spin will get cancelled and they will be attracted very least. उनका जो अट्रैक्शन होगा वो एकदम ना होगा ही, अट्रैक्शन ना के बराबर होगा, तो मैग्नेटिज्म दिखेगा ही नहीं. लेकिन हाँ दोस्त, they can repel each other. Okay, they will repel, but the repulsion will be what? Very weakly. So they can be repelled weakly, are weakly repelled. ठीक है, क्योंकि पेड़ होते हैं तो मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से उनका नेट जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाता है. देयरफॉर दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर. द मैग्नेटिक फील्ड बाय बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल रिपेल. बट जो होगा रिपेल, वो रिपल्शन होगा इनके बीच में, जो वो क्या होगा, बहुत कम होगा. इट विल बी वेरी वीक. और ये किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो ऐसे सब्सटेंस जिनके, सिंपल समझ लेना, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड है और वो वीकली रिपेल होते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दीज विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक. दिस विल बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन balances the spin. The pairing of electron balances the spin. If the spin is balanced, तो भाई उसके अंदर क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा? मोमेंट ही नहीं होगा ना. इट विल कैंसिल दी मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन होने से क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी. दिस काइंड ऑफ सॉलिड जहाँ पे ऐसा होता है विल बी कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सॉलिड. अब कौन से क्रिस्टल, कौन से एलिमेंट्स ये दिखाते हैं? फॉर एग्जांपल N2 ले लो, आप F2 ले लो, यू विल सी NaCl ले लो, H2O ले लो, या फिर बेंजीन ले लो. सो गाइस, these are the compound, these are the elements or molecules you can say which are what? Diamagnetic in nature, or I can say biomagnetic substance or solid. I hope diamagnetism is clear. So if I talk about पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, तो दोस्त पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स में उसका उल्टा होता है. यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं. इज एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सब्सटेंस एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई इनमें स्पिन होगा, जिसके वजह से जब भी मैं whenever I'll bring this particular solid, this particular crystal in the magnetic field, जब भी मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा तो क्या इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा ही, है कि नहीं? इंटरेक्शन होगा ही. सो भाई ये अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, बट वीकली अट्रैक्ट होंगे. दे विल बी अट्रैक्टेड वीकली. दे विल बी अट्रैक्टेड वीकली विद दी इन दी मैग्नेटिक फील्ड. सो ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, and in the magnetic field they'll be weakly attracted toward the magnetic field. These substances will be referred as paramagnetic. These are called as paramagnetic substances. Clear है दोस्त? So क्या होता है भाई, जब भी unpaired electrons spin होते हैं, they give rise to magnetic moment. They will, since unpaired electrons are spinning, if they are spinning they will give rise to what? Magnetic moment. It will give rise to magnetic moment. जब भी मेरा magnetic moment आ जाएगा
द सब्सटेंस विल गेट अट्रैक्टेड टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया, समझ में आ रहा है, ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दी सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना भाई, ये जो सब्सटेंस है, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब मैं इनमें मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जा रहा हूँ, इनको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जा रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन है उसकी वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, और जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आने के बाद दे आर एग्जिबिटिंग व्हाट, मैग्नेटिज्म। दे आर एग्जिबिटिंग मैग्नेटिज्म when there is an external magnetic field। समझ में आ रहा है? और ये जो मैग्नेटिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं, ये कब तक रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फील्ड है। जैसी फील्ड मैं निकालता हूँ, मैग्नेटिज्म इनका लूज हो जाएगा, दे विल लूज दी मैग्नेटिज्म। सो ऐसे सब्सटेंस को मैं बोलता हूँ पैरामैग्नेटिज्म। ये बीच वाले होते हैं, जब तक भाई फोर्स है तब तक मैं मैग्नेट जैसा बिहेव करूंगा। जैसे ही मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल्स, ये तुम्हारे समझ लो, ऑक्सीजन ले लो तुम, ठीक है, कॉपर +2 ले लो, Fe+3 ले लो, है कि नहीं, क्रोमियम +3 ले लो। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मेटल्स है, या फिर आप बोल लो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसके एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दे बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेट व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आई होप नाउ दिस पैरामैग्नेटिक property of solid is clear. Okay, now let us go to the next topic. So this topic is फेरोमैग्नेटिज्म। भाई नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कुछ बड़ा है। सो पहला जो हमने देखा वो डायमैग्नेटिक सॉलिड था, जिसमें मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मूवमेंट था ही नहीं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वर पेयर्ड। सेकेंड व्हाट वी सॉ वाज the electrons were unpaired and they were weakly attracted to a magnetic field. Whenever there is an external magnetic field, they are behaving like a magnet. They have magnetic moment and they are exhibiting magnetism. Once the external field is removed, they are not behaving like a magnetism. Okay, not behaving like a magnet. So अगर मैं फेरोमैग्नेटिज्म की बात करूँ तो सब्सटेंस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, उसमें सिंपल कम अनपेड, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस, वैसे था कौन, मेरा पैरामैग्नेटिक। इफ आई टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक्स गाइस, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर अट्रैक्टेड। भाई यहाँ पे वो वीकली, अगर हम बात करें किसकी, पैरामैग्नेटिक, दे वर वीकली अट्रैक्टेड। बट इफ आई टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक्स, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा स्पिन होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक, जब भी मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आऊँगा, दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। दे आर व्हाट, अट्रैक्टेड, दे आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय magnetic field. They are attracted strongly by magnetic field. So ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस को मैं बोलता हूँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक। अब दोस्त देखना, अभी हमने देखा था पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था भाई, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले रहा था, देवर becoming again normal, they were becoming again normal, and they were behaving, they're losing their magnetism. But if I talk about ferromagnetic substance, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, these substance are permanently magnetized. इनको एक बार एक strong magnetic field में डाल दिया तो ये permanently magnetize हो जाता है, and they become magnet even after removal of magnetic field. So what I can write, these can be permanently what, this can be permanently magnetized. These can be permanently magnetized. Why? Because they retain their magnetism even after the removal of magnetic field.
even after removal of magnetic field, right guys? Okay, so what are the example of ferromagnetic substance? If I have to give some examples such as your, सबसे पहला भाई यही आएगा, Fe हो गया तुम्हारा, कोबाल्ट हो गया तुम्हारा, निकल हो गया तुम्हारा, एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा, क्रोमेट हो गया. See guys, these are the one, okay, if you observe carefully, these are the one जो आपको एक्चुअली मैग्नेट में मिलता है. सी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो फेकोनी, याद है ना, है कि नहीं? सो ये जो है Fe या फिर कोबाल्ट या फिर निकल या फिर गैल्वेनियम, ये सब क्या थे तुम्हारे, ये मैग्नेट्स में भी मिलते हैं, इनके मैग्नेट्स भी बनते हैं, बिकॉज दे कैन बिकम, दीज सॉलिड्स कैन बिकम परमानेंट magnet. So I hope ferromagnetism is also clear so far. So guys, all the magnetic properties, all the solids, they are characterized, they are classified into three depending on their behavior when they are brought under the magnetic field: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Diamagnetic क्या होता है? There are paired electrons, all the electrons are paired, therefore they are weakly attracted, they are not attracted but they are weakly repelled by magnetic field. क्योंकि वो अट्रैक्टेड थे, दोनों एक दूसरे में ही खत्म हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैं उनको लेकर जाता हूँ तो दे आर वीकली रिपेल्ड. तो ऐसे सब्सटेंस को मिलता है डायमैग्नेटिक. एग्जांपल के लिए तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया था, फ्लोरीन हो गया था, है ना, NaCl, H2O, बेंजीन, ये थे. अभी पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था दोस्त, पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे बट बहुत ज़्यादा नहीं थे, देयर वर, और जब भी मैं उनको कहाँ लेके जा रहा था, उनके स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा था. whenever I am putting them into a magnetic field, what happens, they started exhibiting magnetism, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगे थे. बट कब तक, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है पार्शियली. तो जब मैं उनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालता हूँ, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म. इफ आई टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, दे यूज्ड टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. और जब भी उनको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में जाता हूँ, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ magnetic field, and these have a capacity, these have a tendency to become permanent magnet. They can be permanently magnetized, okay, because they retain their magnetism even after the removal of what, my magnetic field, external magnetic field. Example के लिए तुम्हारा Fe, cobalt, nickel, समझ आ रहा? Fine. So this is where we end this particular theory part. In the next lecture we'll be focusing on numerical parts of solid state. I hope many of you have given homework. Very good guys. Rest all जो सब देख के छोड़ रहे, kindly make note, okay, make a proper notes and do your homework, okay. Very good. Bye. See you in the next lecture.